السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ایڈم سیکر کے ایک سوال کا جواب دیا جائے گا اور بائبل کے چند ریفرنس آپ کے سامنے رکھے جائیں گے اور یہ پوچھا جائے گا ایڈم سے کہ ان ورسوں کا کیا مطلب لیتا ہے۔ جیسے اس نے اس حدیث کا غلط مطلب لیا ہے نا، اور سواری کو اس نے سیکس بنا دیا، جو سواری کا لفظ ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو اس نے سیکس بنا دیا۔ اب بائبل کے ورس میں سامنے رکھوں گا اس کے، ٹھیک ہے نا، اس ویڈیو میں، اور یہ پوچھوں گا انشاءاللہ اور بتاؤں گا آپ کو کہ ان کا مطلب کیا لیتا ہے یہ ایڈم سیکر ان بائبل کے ورسوں کا، ٹھیک ہے نا، اور اس کے ایک سوال کا جواب دیں گے۔ پہلے اس کا سوال سن لیں پھر چلتے ہیں آگے۔ چیز بھیج رہا ہوں، یرکب، ٹھیک ہے، یرکب عمرہ، اس کو پکڑو، یہ تمہیں میری ویڈیو کی لائیو چیٹ میں ورڈ نظر آ جائے گا، ٹھیک ہے، اس کو پکڑو اور گوگل کے اوپر ڈالو اور مجھے بتاؤ کتنی پورن ویڈیوز تمہارے سامنے کھلتی ہیں۔ تو دوستو آپ نے دیکھا کہ ایڈم سیکر نے بولا ہے کہ یرکب امرا کو گوگل کے اوپر ریسرچ کرو، دیکھو یہ سیکسی ویڈیو تمہارے سامنے کھلے گی۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ یرکب کے میننگز کیا ہیں۔ یرکب کا میننگ آپ کے سامنے شو ہو رہے ہیں سواری کے، ٹھیک ہے نا، سواری کے میننگ ہے یرکب کے، اور گوگل ڈکشنری کے اندر بھی یرکب کے میننگز جو ہے نا، یرکبون کے میننگز جو ہیں وہ سواری کے ہی ہیں۔ اور امرا کا مطلب ہوتا ہے عورت، یرکب امرا اس کا مطلب بن گیا ایک عورت کی سواری، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ورڈ تو حدیث میں موجود نہیں ہے، یہ کیوں میں ریسرچ کروں گوگل کے اوپر؟ یہ تو بتا دو، یرکب امرا ایک عورت کی سواری، جب یہ ریسرچ کرنی ہے گوگل کے اوپر تو سیکسی کھولنا ہے جناب، کیا کھولنا ہے اور کیا کھولنا ہے بتائیں آپ مجھے، ٹھیک ہے نا۔ یہ کیوں ریسرچ کرنی، حدیث کے ورڈ یہ ہے ہی نہیں، یہ کیوں ریسرچ کروں؟ حدیث کے ورڈ میں دکھاتا ہوں کیا لکھا ہوا ہے حدیث میں۔ یہ آپ دیکھیں حدیث میں لکھا ہے یرکبون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یرکبون رسول اللہ لکھا ہوا ہے، یہاں پہ یرکب عمرہ نہیں لکھا ہوا، عورت کی سواری نہیں لکھا ہوا، یرکبون رسول اللہ لکھا ہوا ہے جناب۔ اور یرکب کا مطلب جو میں نے آپ کو بتا دیا گوگل کے اوپر ریسرچ کر کے، اس کا مطلب، اور گوگل ٹرانسلیشن سے بھی آپ کو بتایا ہے کہ اس کا مطلب صرف سواری ہے، صرف سواری ہے۔ اب ریسرچ کر کے دکھاتا ہوں گوگل کے اوپر یرکبون کو اور یوٹیوب کے اوپر آپ کو۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بھائی، یوٹیوب گوگل کے اوپر میں نے ریسرچ کیا ہے یرکب کو، اور یرکب اور یرکبون کو ریسرچ کیا ہے۔ ایک بھی ویڈیو اونلی ون ویڈیو بھی مجھے نہیں ملی سیکسی جناب، یرکبون یا یرکب کو ریسرچ کرنے پر۔ یہاں پہ بچے سواری کر رہے ہیں، بڑے سواری کر رہے ہیں، گاڑیوں کی بچے سواری کر رہے ہیں، گھوڑوں کی سواری ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا، اونٹ کی سواری کر رہے ہیں لوگ۔ یرکب اور یرکبون کی ایک بھی ویڈیو مجھے گوگل سے نہیں سیکسی ملی، ٹھیک ہے نا۔ تم نے ریسرچ کی تھی یرکب عمرہ، یرکب عمرہ کا مطلب ہے ایک عورت کی سواری۔ جب ایک عورت کی سواری کو تم ریسرچ کرو گے تو وہ ویڈیو اچھی نہیں کھلے گی، اور یہ حدیث کے ورڈ ہی نہیں ہے، کیوں بھائی ہم اس کو کریں ریسرچ؟ یہ تو بتاؤ۔ میں نے ویڈیو میں تجھے بولا تھا کہ اس کی پہلے ٹرانسلیشن کرو، تم نے بولا کہ میں نے کی ہے ٹرانسلیشن، تم خود کرو، کہ میں یہاں پہ کھول نہیں سکتا۔ تو جو میں نے ٹرانسلیشن کیا ہے، سب ریسرچ کیا ہے اس کے اوپر، تو اس کا مطلب ہی نہیں ہے وہ جو حدیث میں موجود ہے لفظ، وہ تو اور ہیں، اور جو تم بول رہے ہو وہ اور ورڈ ہیں۔ یہ تو بگانے کے لیے سٹریم سے تو نے مجھے یہ پلان کیا تھا نا۔ اور جس حدیث کے متعلق یہ غلط باتیں بتاتا ہے وہ آپ کو گوگل کے اوپر یرکبون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ریسرچ کرنے پر آپ کو مل جائے گی عربی لینگویج میں، اردو ٹرانسلیشن آپ کو خود کرنی پڑے گی۔ یہ اس وقت آپ کو سکرین کے اوپر شو بھی ہو رہی، میں نے ٹرانسلیشن کی ہے اس کی۔ اس پوری حدیث میں ایک بھی ورڈ غیر شرعی، ٹھیک ہے نا، آپ نہیں دکھا سکتے، سیکسی نہیں دکھا سکتے۔ جو یہ کتا بتاتا ہے نا ایڈم سیکر، غلط مطلب، غلط مقصد، غلط مفہوم بیان کرتا ہے اس حدیث کا، اس کا بالکل غلط مفہوم بتاتا ہے، غلط مطلب بتاتا ہے۔ بائبل کا ریفرنس میں آپ کو بعد میں دیتا ہوں بتانے کے لیے۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
अपना फरमा रहे हैं कि आज रात मैं जिन्नों को तलावत करूँगा, जिसका मफ़हूम ये है कि जिन्नों को खुदा का कलाम पेश करना है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो एक जगह के ऊपर जाते हैं जनाब, एक जगह के ऊपर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि आप जिन्नों के लिए भी नबी थे, इसलिए खुदा का पैगाम देने के लिए उनके पास गए, पहली तो बात ये कन्फर्म, ठीक है। उसके बाद हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को साथ लेकर एक जगह के ऊपर जाते हैं, ठीक है ना। आप दूसरा आपका मौज़ा ये है कि आपको पता है कि यहाँ पे जिन्न है, ठीक है ना, वहाँ पे जाते हैं। फिर वहाँ पे एक ज़मीन के ऊपर ख़त खींचते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए कि इस दायरे के अंदर लाइन के पीछे रहना, आगे नहीं आना, आगे आए तो हलाक हो जाओगे। आपको ये भी पता है कि लाइन ये इसको बचाएगी, ये मौज़ा है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसके अंदर, इस हदीस के अंदर, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जिन आते हैं, ठीक है ना। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने देखा है कि काले काले लंबे लंबे लोग आते हैं, कमज़ोर लोग आते हैं, उनके जिस्म के ऊपर कपड़े नहीं थे, लेकिन मैं उनकी शर्मगाहें नहीं देख रहा, मुझे इनकी शर्मगाहें नहीं नज़र आई। वो बहुत कमज़ोर थे, गोया कि वो ज़ुम्बी थे, ठीक है ना। गूगल ट्रांसलेशन यहाँ पे बच्चे की ट्रांसलेशन की है उनकी कि वो बच्चे थे, ठीक है ना, लेकिन वो ज़ुम्बी थे। जो भी थे, जिन थे, कमज़ोर थे, पतले थे, काले थे, रात के अंधेरे में, ठीक है ना, अपना उनको काला जिस्म नज़र आ गया, जिस्म के ऊपर कपड़े नहीं है वो नज़र आ गए, जिस्म के ऊपर मांस बोटी कम है, कमज़ोर है, गोश्त कम है, वो नज़र आ गया। लेकिन शर्मगाहें क्यों नहीं नज़र आई? क्योंकि शर्मगाहें नज़र उनकी इसलिए नहीं आई क्योंकि वो ढकी हुई थी, ठीक है ना। तो ये मतलब गलत लेता है एडम सीकर कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अच्छा सलूक नहीं कर रहे थे। मैं वो वर्ड वो यूज़ नहीं कर सकता कि जो उसने किए हैं, ठीक है ना। यहाँ पे एक भी अपना वर्ड उसकी तरफ जाता ही नहीं है, उस बात की तरफ जिसका जो ये बताता है एडम सीकर, ठीक है ना। आगे लिखा है कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी करने की कोशिश करने लगे या सवारी करने लगे, ठीक है ना। ये बोल रहा है कि सवारी का जो वर्ड है ये सेक्स के लिए इस्तेमाल होता है। इस पागल को ये नहीं पता कि यरकब और यरकबून का मतलब सवारी है, सेक्स नहीं। गूगल के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर मैंने रिसर्च करके आपको दिखाया, डिक्शनरी के अंदर आपको दिखाया कि अपना यरकबून का मतलब क्या है, यरकब का मतलब क्या है। सिर्फ ओनली सवारी है, सेक्स बिल्कुल भी नहीं है यरकब का मतलब, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, वो जिन चले जाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते हैं उनके ऊपर, खुदा का कलाम पेश करते हैं, वापस आते हैं, फिर फरिश्ते आते हैं। बहुत लंबा वाक़या है, ठीक है ना। और जब वो फरिश्ते आते हैं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोए हुए होते हैं, अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की गोद में सर मुबारक रख कर सोए हुए होते हैं। जब बेदार होते हैं तो आप फरमाते हैं कोई आया था, ठीक है ना। तो वो बताते हैं जी आए थे, सफ़ेद कपड़े पहने हुए कुछ लोग आए थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शायद थे, यानी कि वो थे क्या, फरिश्ते थे वो। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बातें भी सुनी, ठीक है ना, सोए हुए में। ये भी आपकी अपना वो मोइज़ा ही है, नबी का दिल जागता है जब वो सोते हैं। गोया ये कि इसका मतलब ये निकलता है मुख्तसर तौर पर कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम जिन्नों के भी नबी थे, उनको खुदा का कलाम पेश करने के लिए गए थे और पेश किया, और बाद में फरिश्ते आए, उन्होंने मुबारक दी, कहा कि जो इसकी बात मानेगा वो जन्नती है, जो नहीं मानेगा वो दोज़खी है, ठीक है ना। ये बातें हुई तमाम इस हदीस में मौजूद हैं, ठीक है ना। तो इसका बिल्कुल भी गलत मतलब ज़रा सा भी नहीं है। एक सवारी का वर्ड है यरकब या यरकबून, जिसका मतलब है सवारी, ठीक है ना। इस वर्ड के ज़रिए ही ये एडम सीकर जो कुत्ता बेगैरत है ना, वो गलत बात करता है, ठीक है ना। और इसका हाल तो ये है, मेरी इस वीडियो से नीचे वाली अगर आप वीडियो मेरे चैनल के ऊपर आप देखेंगे तो वहाँ पे इसने जीसस क्राइस्ट को भी गाली दे डाली है। वो वीडियो ज़रूर देखना आपने, ठीक है ना। ईसा अलैहिस्सलाम यस्सु मसीह को भी एडम सीकर ने गाली दी है, बाकी तो बहुत दूर की बात है ना। और अब दोस्तों बाइबल के रेफरेंस की तरफ चलते हैं। बाइबल से मैं आपको बताता हूँ मिसाल देकर, ठीक है ना। जिस तरह ये लफ्ज़ों का गलत मतलब लेता है ना, तो मैं मिसाल देकर आपको समझाता हूँ। अब उनके ऊपर बात करने से पहले, बाइबल के उन वर्सों के ऊपर बात करने से पहले आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि मेरा मकसद जीसस क्राइस्ट अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी करना बिल्कुल भी नहीं है। हम मुसलमान रहते ही नहीं अगर
अल्लाह के किसी भी नबी की शान में कोई गुस्ताखी करें। मेरा मकसद गुस्ताखी करना नहीं, मेरा मकसद सिर्फ ये है एडम को दिखाना बाइबल के वर्स और उससे ये पूछना कि इन वर्सों का मतलब क्या है। जैसे इसने यरकबून और यरकब जिसका मतलब है सवारी, उन उसका मतलब इसने सेक्स बना लिया ना कि इसका मतलब सेक्स है। अब बाइबल के कुछ वर्स मैं दिखाना चाहता हूँ, ये पूछना चाहता हूँ कि इसका ये क्या मतलब रहता है इस एतबार से, ठीक है ना। बाइबल में मरकज़ की अंजील चैप्टर 14 वर्स 8 में जिसका मतलब ये बनता है कि एक औरत जो है, बाइबल के रेफरेंस के साथ मैं बता रहा हूँ आपको कि एक औरत जो है वो जीसस क्राइस्ट के जिस्म पे अतर को मल रही है, ठीक है। क्या किया उसने? जिस्म के ऊपर अतर को मला। तो मला कैसे जाता है? लगाया कैसे जाता है? हाथ के साथ लगाया जाता है, ठीक है ना। तो एक औरत ने बाइबल के एतबार से ईसा अलैहिस्सलाम के जिस्म के ऊपर अतर लगाया। अब एडम तुम मुझे बताओ कि इस वर्स के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल। सवारी को तो तुम गलत व्यू से देखते हो ना। सवारी का मकसद और मतलब तुमने ये बताया लोगों को कि इसका मतलब सेक्सी है, ठीक है ना। अब ये हाथों से एक गैर महरम का गैर महरम को अतर लगाना, मलना उसके जिस्म के ऊपर, ठीक है ना। तो इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि तुम ही गलत व्यू लेते हो, हम लोग नहीं लेते। हाँ, तो अब आगे चलते हैं। लूका की किताब चैप्टर 7 वर्स 38 में ये लिखा हुआ है, जिसका मतलब ये है कि एक औरत ने जीसस क्राइस्ट के कदमों को चूमा, किस किया उनको, ठीक है ना। यानी कि पंजाबी च कह लो चुम्मियां लईयां, पैरां दियां चुम्मियां लईयां। किन्नियां कुछ चुम्मियां लईयां, ये मैं तुहानूं हुणे दसदा रेफरेंस बाइबल के हवाले नाल। लूका की किताब चैप्टर 7 वर्स 45 जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा है, ये जीसस क्राइस्ट फरमा रहे हैं, तूने मुझको बोसा ना दिया, मगर इसने जब से मैं आया हूँ मेरे पाँव चूमना ना छोड़ा। यानी कि जब से ईसा अलैहिस्सलाम जीसस क्राइस्ट वहाँ पे आए तब से लेकर ये बात करने तक उस औरत ने कदमों को चूमना बंद नहीं किया। यहाँ पे साफ तौर पर लिखा है चूमना ना छोड़ा। अब मैडम तुम ही मुझे बता दो कि इस वर्ष का क्या मतलब है, ठीक है ना। एक गैर महरम के कदमों को बोसा दे रही है, वो है अभी लड़की। एक गैर महरम लड़की एक गैर महरम लड़के के कदमों को बोसा दे रही है, दोनों है अभी बालिग। औरत का लफज है, बच्ची का लफज यहाँ पे मौजूद नहीं है, ठीक है ना। औरत का लफज है, ठीक है ना, वो मिन का लफज मौजूद है, ठीक है। तो अब मुझे बताओ कि इसका क्या मतलब है। तुमने सवारी के लफज को तो सैक्स बना लिया ना, ये चुम्मियां लैन वाली गल नूं किहड़े बन्ने लैके जाएगा तू मैनूं ये दस। ਅਸੀਂ नहीं गलत व्यू लियांगे, मैं तेरा व्यू पूछना चाਹੁੰਦਾ ਵਾ, तू ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब लेना है इस वर्स ਦਾ बाइबल दी दा। बाइबल सॉन्ग ऑफ सॉन्ग चैप्टर 5 वर्स 3 और 4 में क्या लिखा है आप खुद पढ़ भी सकते हैं। मैं तो कपड़े उतार चुकी, अब फिर कैसे पहनूं, मैं तो अपने पाँव धो चुकी, अब इनको क्यों मैला करूं। मेरे महबूब ने अपना हाथ सुराख से अंदर किया और मेरे दिलो जिगर में उसके लिए जुम्बश हुई। एडम इस इन वर्षों का बाइबल का भी ना बताना कि मतलब तुम क्या लेते हो। ये जितने मैंने शो किए हैं अब स्क्रीन के ऊपर अपना सॉन्ग ऑफ सॉन्ग चैप्टर 5 वर्स 3 और 4 को मैंने शो किया है। इनको अगर सिर्फ देखा जाए तो इनका क्या मतलब निकलता है, ठीक है ना। यही काम तूने बिल्कुल किया था अपनी वीडियो में, ऊपर से और नीचे से हदीस बयान ही नहीं की, सेंटर से चंद अल्फाज पकड़े हैं, वो भी अपना सवारी का मतलब तुमने सेक्सी बना दिया, ठीक है ना। और यहाँ पे कौन सी साफ बात लिखी हुई है, क्या मतलब लिया जाए इन बातों का ना, ये तुम बताओ। रोमियो की किताब चैप्टर 16 वर्स 16 और करंथियों की किताब नंबर 1 वर्स नंबर 20 और चैप्टर नंबर 16 करंथियों की किताब नंबर 2 चैप्टर 13 वर्स 12 थ्रिसिगियो की किताब नंबर 1 चैप्टर 5 वर्स 26 पतरस की किताब नंबर 1 चैप्टर 5 वर्स 14। इसमें क्या लिखा है ये पढ़ के देखो पहले। यहाँ पे लिखा है, जब एक दूसरे को मिलो तो सलाम करो और बोसा लो, किस करो, चुमियां लो एक दूजे दियां। जो मिलो ना एक दूजे नाल तो चुमियां लैके मिलो। यरकबून यरकब जिसका मतलब है सवारी, ओनली सवारी, बस सवारी,
ठीक है ना। उस सवारी को तुमने सेक्स बना दिया एडम। अब तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारी बाइबल में जो वर्ड ये मौजूद है जो मैंने अब तक तुझे दिखाए, इनका क्या मतलब लिया जाए। मैंने कुछ नहीं लेना है, मैं पूछ रहा हूँ तुमसे, क्योंकि तुम्हारी एक वीडियो भी मेरे हाथ लगी है जिसमें तुमने जीसस क्राइस्ट को भी गाली दे डाली है, ठीक है ना। तो इस बाइबल के वर्सों के ऊपर तुम्हारा क्या ख्याल है, ये बताओ मुझे तुम, ठीक है। इनका क्या मतलब लिया जाए। और जब तुम मिलते हो एक दूसरे को, अपने बाप से सलाम करते हो, भाइयों से करते हो, दोस्तों से करते हो, अजीज़ों रिश्तेदारों से करते हो, तो मैनू सच सच दसी चुम्मी लेना होना कि नहीं लेना होना। क्योंकि बाइबल तुम्हें हुक्म दे रही है, बाइबल की इन वर्सों के ऊपर देखूँ मैं कि तुम अमल करते हो कि नहीं करते। मैं बाइबल की बात कर रहा हूँ, बाइबल के वर्स आपको दिखाए, शो किए, रेफरेंस बताए, बाइबल की बात कर रहा हूँ। एक औरत जो है वो किस कर रही है जीसस क्राइस्ट को, बाइबल के एतबार से, मैं नहीं कह रहा हूँ, बाइबल के एतबार से जीसस क्राइस्ट को एक औरत किस कर रही है, वो उनको रोक ही नहीं रहे, मना ही नहीं कर रहे, ठीक है ना। और दूसरी औरत क्या कर रही है, अतर लगा रही है, मल रही है, अतर उनके जिस्म के ऊपर, बॉडी के ऊपर अतर लगा रही है, ठीक है ना। उनको भी नहीं रोक रहे, ठीक है ना। क्या मतलब लिया जाए। तुम्हारे जैसा अगर गंदा जहन किसी का हो तो क्या मतलब लेगा इनका। तुमने तो बोल दिया ना, तुम्हारे जो चेले भी बोलते हैं कि मोहम्मद को ये शौक था, मोहम्मद ये करता था, ये करता था, अस्तगफिरुल्लाह, नाउज़ुबिल्लाह, नाउज़ुबिल्लाह। कुत्तों के तुम्हारे ऊपर लानत हो, ठीक है ना एडम, तुम्हारे ऊपर और तुम्हारे चेलों के ऊपर लानत हो, ठीक है ना, जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ऐसे इल्ज़ाम लगाते हो और ऐसी बातें लगाते हो। ये बाइबल के वर्स मैंने दिखाए हैं। ये बाइबल के दरबार से जीसस क्राइस्ट औरतों से क्या करवा रहे हैं, ये बताओ तुम मुझे। मैं नहीं बोलना चाहता, ना ही मैं कहूँगा, वर्स दिखाए हैं तुम्हें। एक जगह पे क्या हो रहा है, एक औरत लगा रही है अतर, बॉडी के ऊपर मल रही है, ठीक है। और दूसरी क्या कर रही है, किस कर रही है पाँव के ऊपर, ठीक है ना। और जो मतलब है, मतलब तुमने बताना है, क्योंकि तुम वर्ल्डों के गलत मतलब लेते हो। जैसे हदीस की वर्ल्ड सवारी का मतलब तुमने सेक्स लिया ना, अब इनके मतलब ही मुझे बताना है, ठीक है तुमने। अब लुका की किताब चैप्टर 19 वर्स 23 में क्या लिखा है, ये लिखा है यहाँ पे कि जीसस क्राइस्ट फरमा रहे हैं अपने एक शागिर्द को, नौकर को, फिर तूने मेरा रुपया साहूकार के यहाँ क्यों ना रख दिया कि मैं आकर उसे सूद समेत ले लेता। यानी कि जीसस क्राइस्ट फरमा रहे हैं कि तुमने मेरे जो रुपया था वो बैंक में क्यों नहीं रखा। यहाँ पे लिखा है बैंक, बैंक में क्यों नहीं रखा, मैं आकर सूद समेत वापस ले लेता। सूद जो है वो बहुत बड़ा गुनाह है, ठीक है। लेकिन बाइबल के इस वर्स से ये पता चल रहा है कि बाइबल का जो जीसस है ना, जो बाइबल का जीसस है वो सूद को हलाल करार देते थे, ठीक है ना। बाइबल के जीसस, बाइबल के रेफरेंस के साथ मैं आपको बता रहा हूँ, लूका की किताब चैप्टर 19 वर्स 23 के एतबार से कि सूद समेत मैं उसे ले लेता, बैंक में रख देते। तो इसका क्या मतलब है, उन्होंने सूद को हलाल करार दिया है। इसका मतलब ही एडम मुझे बताना है तुमने, ओके। अब मैं आपको एक और वर्स दिखाता हूँ बाइबल का, लूका की किताब चैप्टर 19 वर्स 30 और 31 बाइबल में लिखा हुआ है कि जिसका मफहूम ये है कि जीसस क्राइस्ट अपने शागिर्दों को भेजते हैं कि एक जगह के ऊपर जाओ, एक गांव में जाओ, वहाँ पे एक गधी का बच्चा जो है ना वो आपको मिलेगा, वो उसको ले आओ। अगर कोई तुम्हें पूछे उस गधी के बच्चे के बारे में तो कहना ये मुझे चाहिए, यानी कि वो खुदावंद को चाहिए या जीसस क्राइस्ट को चाहिए। इस वर्स के मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये कौन सी बात हुई भाई। जब किसी को कोई चीज़ लेनी हो तो उससे पूछा पहले जाता है, ये नहीं कि चीज़ उठा के ले आओ, बाद में अगर वो देख ले तो कहना कि हमें ये चाहिए या ये जीसस को चाहिए, क्राइस्ट को, ठीक है ना। ये नहीं, अगर वो ऐसा ही हुआ, उनके मालिक ने भी देखा भी, गधी के बच्चे के मालिक ने देखा भी कि मेरी गधी के बच्चे को ना वो लेके जा रहे हैं, ठीक है ना। उसने पूछा, उन्होंने बताया कि ये खुदावंद को चाहिए, उन्होंने उन्हें दे दिया, ठीक है ना। वो एक अलग बात है, अगर वो ना देखता गधी के बच्चे का मालिक तो ये क्या हो जाना था, उन्होंने तो लेके आ जानी थी, ये चोरी हो जानी थी। क्या हो जाना था, ये चोरी हो जानी थी। पिछले वर्ष से ये साबित होता है कि सूद को हलाल करार दिया बाइबल के रेफरेंस के साथ, ठीक है। अब क्या हुआ, अब ये चोरी है,
کہ جاؤ وہاں پہ گدھی کا بچہ ہے اس کو لے آؤ، اگر کوئی پوچھے تو کہہ دینا کہ مجھے چاہیے، نہ پوچھے نہ کسی کو پتہ چلے تو لے آؤ نا، یہی اس کا مطلب بنتا ہے نا۔ مطلب تو سارے تمہارے دماغ کے حساب سے میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں ایڈم، اور حدیث کا کیا سے کیا بنا دیا حدیث کا تم نے؟ میں نے پہلے بھی تھوڑا سا مختصر طور پر آپ کو حدیث کے بارے میں بتایا کہ جنوں کو خدا کا کلام پیش کرنے کے لیے گئے تھے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ٹھیک ہے نا، اور تم نے اس بات کو غلط پھیلا دیا، ٹھیک ہے نا۔ اب بائبل کی ریسرچ کر لو نا، جن کا لفظ تمہیں ملے گا ہی نہیں بائبل میں، ریسرچ کر کے دیکھو، نیو ایسٹیمیٹ میں بھی آپ کو جن کا لفظ نہیں ملے گا، اولڈ ایسٹیمیٹ میں بھی آپ کو جن کا لفظ نہیں ملے گا، ٹھیک ہے نا۔ بائبل میں جن کا لفظ ہے ہی نہیں، جیسس کرائسٹ ایک بھی ہمیں حوالہ نہیں ملتا کہ وہ جنوں سے ان کی ملاقات ہوئی یا جنوں کو نبوت انہوں نے جنوں کے اوپر نبوت کی، ٹھیک ہے نا، نہیں ملتا ہمیں کوئی بھی ریفرنس۔ اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ جنوں کے لیے بھی نبی تھے، ٹھیک ہے، انسانوں کے لیے بھی نبی تھے، جانوروں کے لیے بھی نبی تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو جنوں کو خدا کا کلام پیش کرنے کے لیے گئے تھے، جس کا تو انہیں ایشو بنا لیا۔ کیا اس میں ایشو والی کون سی بات ہے؟ جو غلط مطلب تم نے لیا ہے، میں نے بائبل کے بھی ریفرنس تمہیں دیے ہیں، تم نے ان کا بھی مجھے بتانا ہے کہ کیا مطلب لیتے ہو، ٹھیک ہے نا۔ کرسچینٹی کی تبلیغ ایسے نہیں ہوتی جناب، کسی کو گالی دے کر، کسی کے مذہب کو گندا ثابت کر کے، بہانے ڈھونڈ کر، ٹھیک ہے نا، الٹے سیدھے الزامات لگا کر، ایسی جھوٹی باتیں من گھڑ کر کے بتانا کہ یہ مذہب اچھا نہیں ہے، ایسے دین کی تبلیغ نہیں ہوتی۔ دین کی تبلیغ کرنے کے لیے پہلے اپنی منجی تھلے سوٹی پھیرو جناب، یہ ڈانگ پھیر کے نا اپنی منجی تھلے پھر کسی حال دھیان کرو۔